नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग। 9 p.m. इट्स शो टाइम। आज फिर देखते हैं कौन सा टॉपिक हम लेकर आए हैं। कल के डिस्कशंस के बाद में जो हमारे को रिव्यूज मिले हैं या हम हमारे साथ फोन पर जो डिफरेंट बातें हुई उनमें से एक ने मुझे ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था। हालांकि वो सब्जेक्ट से रिलेटेड तो उतना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आया है तो मैं चाहती हूँ उसका आंसर दें। But the person has asked that is there a difference between any suppose the person is living in Maharashtra, and is there a difference between studying in Maharashtra board or CBSE board with respect to when we are trying to take admissions through MHCET? That means we are trying to take admission into an engineering college in Maharashtra through MHCET. So is there any difference? Is there any advantage or disadvantage of any of the boards? So the answer would be that no, there is no either advantage or disadvantage, because the marks which are considered for engineering college admission are purely MHCET marks. And therefore, if both the children get same marks in CET, suppose, then who will be given the preference? For that, government rules are decided. बिकॉज देन दे सी सीईटी में मैथ्स में जिसको ज्यादा है उसको, अगर सपोज मैथ्स में भी सेम है, फिर उसके बाद में फिर किस में और ज्यादा है, फिजिक्स में ज्यादा है उसको, फिर ऐसे करके रूल्स डिसाइडेड है, एंड बेस्ड ऑन दैट द एडमिशंस आर गिवन. That was a question asked today to me. So I thought I will give answer. Maybe many of you people are having this sort of a doubt, because हम लोग अभी क्या हो गया है कि 10th बोर्ड के बाद में अचानक से हमें बोर्ड का डिसीजन लेना है कि हमें सीबीएसई में जाना है या महाराष्ट्र बोर्ड में शिफ्ट करना है. और अभी एडवाइस देने के लिए कोरोना सिचुएशन में किससे पूछे, क्या पूछे, दिस इज अ बिग डायलेमा. So I thought I would answer this question for benefit of everyone. अभी इसके साथ में एक मुझे किसी ने एक स्टोरी शेयर किया, क्योंकि काउंसलिंग के लिए जब पर्सनल काउंसलिंग के लिए लोग जब आते हैं, हालांकि होती तो वो करियर काउंसलिंग है, लेकिन करियर काउंसलिंग, करियर ये जो एस्पेक्ट है ना, ये अपने लाइफ के ऑलमोस्ट हर सेक्टर को प्रभावित करता है. बीट फाइनेंस, बीट फैमिली, एवरीवेयर इट इज देयर. सो स्टोरी ऐसी थी कि 3 फ्रेंड्स थे इंजीनियरिंग कॉलेज के, फाइनल ईयर में कैंपस सिलेक्शन हो गया उनका. And after the campus selection etc was done, they were happy, they had good marks in their final years, and then they were called onto the campus, the company which has recruited them. After calling them to the campus, something went wrong, some technical problem, some from the college, some papers were missing, and something of the things happened, misunderstandings were happening there. So the company, which was a very renowned company, said that no, you have to go back because these parameters have not been fulfilled. So naturally, you are going from your home to your place of job. You're joining there, and everyone out there is very happy. And after that, if you have to come back, now the question arises how you face the situation. These 3 friends, how they face the situation, because all the 3 were from the same college, and this problem, because only these 3 were selected, no one else was selected from that particular college. So they didn't know where to go, what to do, and whom to ask for. And the college also didn't have much of clarity. So how each and everyone handled the situation? One of them called home and said that this has happened and I'm coming back. So the person came back. One of them went to his sister, and which was not who was not living near his parents' house. And he said that no, I cannot face my parents either, and I'll be living with my sister, and then I'll decide what to do. Third of them went home, but उनके जो घर वाले थे उन्होंने किसी को नहीं बताया कि ये घर आ गया है. मतलब जब हम कैसे किसी को छुपा कर रखते हैं उस तरह से. अब ये स्टोरी बताने का उद्देश्य क्या है? ये स्टोरी या इंसिडेंट्स मैंने आपके साथ क्यों शेयर किया? उसका रीजन ये है कि आज जो हम अपने आसपास परिस्थितियां देख रहे हैं, उसमें हम इसके ऊपर बाद में आएंगे कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ. हम अपने आज के टॉपिक के डिस्कशन की शुरुआत करते हैं.
आज का डिस्कशन का हमारा जो टॉपिक था वो थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। हमें पॉपुलरली पता है कि जब हमारी जनरेशन छोटी थी तो आईक्यू टेस्ट होता था। मतलब लोग बोलते थे अरे वाह बहुत अच्छा आईक्यू है। फिर मैंने एक बार स्केल देखने की कोशिश की कि कितने स्केल पर आईक्यू अच्छा बोला जाता है, बहुत जीनियस होता है। सो इट वाज अबाउ 140। 140 एंड अबाउ अगर आपका आईक्यू है देन यू आर सपोज्ड टू बी अ वेरी जीनियस पर्सन। वो ज़माना था जब आईक्यू को बहुत इम्पोर्टेंस हुआ करता था। दैट वाज वन ऑफ द क्वेश्चन और दैट इज वन ऑफ द रादर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। होता क्या है आईक्यू में, इसमें मेजर क्या होता है, या अगर किसी का अच्छा आईक्यू होता है तो उसके पास क्या क्या कैपेसिटी होती है, क्या क्या कैपेबिलिटी होती है। सो यूजुअली इट इज अ मेजर ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी। किसी भी फैक्ट को आप कैसे कॉम्प्रिहेंड करते हैं उसकी एबिलिटी को मेजर करता है आईक्यू। देन हाउ फास्ट यू सॉल्व योर मैथ्स प्रॉब्लम्स, दैट इज द मेजर। आईक्यू का मेजरमेंट इंटेलिजेंट कोशेंट आईक्यू। एंड देन मेमोरी, आपको अच्छी तरह से याद रहती हैं और वो याद रखी हुई चीजों का आप बाद में उसको रिकॉल कितना फास्ट कर सकते हैं। और वो भी रिकॉल यानी नहीं मैं सोच रहा था या मैंने ऐसे कहीं सोचा था ऐसा वाला रिकॉल नहीं। रिकॉल इन सब्जेक्ट मैटर, आपने जो भी सब्जेक्ट मैटर देखा है उस तरीके का रिकॉल अपेक्षित हुआ करता। तो आज से 50 साल पहले जब आईक्यू टेस्टिंग का वगैरह शुरुआत हुआ था, then it had gained quite a tremendous importance and it usually was very important and it rather is a important question for all of us. अभी इसमें मैं कल एक रिसर्च पढ़ रही थी, एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था, एक बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, उनका नाम है रॉबर्ट शूलर। ये रॉबर्ट शूलर जो हैं ये नासा में काम करते हैं और इनका खुद का जो आईक्यू है वो 144 है। तो इसका मतलब ही इज जीनियस पर्सन, ही इज वर्किंग विथ नासा। इन्होंने क्या कहा, एक बहुत ही मतलब जो मुझे मजेदार तो नहीं लेकिन ऐसा लगा कि अच्छा ऐसी स्टडीज हो रही हैं अभी और ये इम्प्लीकेशंस हो रहे हैं। व्हाट ही सेड वाज दैट अभी आईक्यू का उतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रह गया है। And why it is so, he told some reasons, and I'll quote them for you. Is Robert Schuller was working with NASA. Now, usually जो इतने high intelligent quotient के लोग होते हैं, they are isolated. तो जब कभी हमारे पास पेरेंट्स आते हैं और वो लोग बोलते हैं हमारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन बहुत अकेला रहता है, तो अब हो क्या रहा है सोसाइटी में, दैट वी हैव टू टीच देम टू बी सोशली अवेयर इफ योर चाइल्ड इज इंटेलिजेंट। ऐसा सीन होने लगा है। तो हम वापस आते हैं रॉबर्ट शूलर जी के जो भी रिसर्च फाइंडिंग्स थे उसके ऊपर कि यू आर रिलेटिवली आइसोलेटेड व्हेन यू हैव गॉट अ वेरी हाई इंटेलिजेंट क्वेश्चन, क्योंकि आपको शायद सब कुछ पता है और आप सोचते हैं ये सामने वाला इसको समझ क्यों नहीं पा रहा है, ये आपको कभी समझ में नहीं आता है। सो कंपैटिबिलिटी लेवल पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर आपके पास कंपैटिबिलिटी अचीव नहीं हो पाती है और इसलिए आप आइसोलेट हो जाते हैं। अभी क्या लगता है लोगों को, सामने वाले को, पीपल से कि समथिंग, मतलब इसके पर्सनालिटी में समथिंग इज मिसिंग और यूजुअली सब लोग आपके साथ डिसएग्री करते हैं। देन उनके लिए जो बहुत पैशनेट चीजें हैं, जो सामने वाला बंदा है उनके लिए जो बहुत पैशनेट चीजें हैं वो कभी कभी आपके लिए मीनिंगलेस हो जाती है। जब आप बहुत ये होते हो, पैशनेट होते हो किसी चीज के लिए, देन दैट कम्स टू बी क्या है उसमें, समथिंग लाइक दैट यू थिंक अबाउट। सो जस्ट अ मिनट, आई जस्ट चार्ज माय। So something like that usually happens. So that's what his research was. And then he said कि अभी क्या हो रहा है कि अभी के conditions में जो कंडीशंस चल रहे हैं, इट इज लेस फेवरेबल हाई आईक्यू इंडिविजुअल्स के लिए। अभी की जो कंडीशन है वो लेस फेवरेबल है देन इट वाज 50 इयर्स अगो। 50 years ago the conditions were more favorable for high IQ people. तो अभी क्या हो रहा है, अभी के इसमें अभी क्या होता था, जो बहुत हाई क्यू वाले होते थे ना, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते बहुत सनकी होते थे वो लोग, तो उनकी जो सनक है ना उसे लोग लेते थे क्योंकि उनके इंटेलिजेंस का इंपॉर्टेंस होता था, उनके इंटेलिजेंस की हमको जरूरत होती थी। जैसे फॉर एग्जांपल तब वो जमाना ऐसा था जब हमको मिसाइल डेवलप कर रहे थे, मिलिट्री एरिया में बहुत सारा काम करना था, बहुत इंटेलिजेंस लगता था वहां पर, न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने थे। अब ये सारी जो चीजें हैं वो ऑलमोस्ट डेवलपमेंटल लेवल पर आ गई हैं। तो अब हमको कैसे लोग चाहिए, तो हम दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं विच इज कॉल्ड एज EQ,
दैट इज इमोशनल क्वोशंट। अभी ये इमोशनल क्वोशंट मेजर क्या करता है? इट मेजर्स एबिलिटी टू मेंटेन पीस विद अदर्स, मतलब रिलेशनशिप, यूजुअली रिलेशनशिप, और कीप टाइम, मतलब कीप टू टाइम, आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए। देन बी रिस्पॉन्सिबल, आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसका हाई ईक्यू होता है वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, ऑनेस्ट होता है, वो अपनी बाउंड्रीज को जानता है कि कहाँ हमें ओवरस्टेपिंग नहीं करनी है। ही इज हम्बल, जीनियस एंड ही इज वेरी मच कंसिडरेट। सो ये सारी क्वालिटीज होती है उसकी, जिसके पास हाई ईक्यू होता है। तो अभी जिसके पास हाई आईक्यू है उसको ये पढ़ाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है कुछ एक्टिविटीज के माध्यम से, that you must have a high IQ to survive, high EQ to survive in this particular scenario in this world. अभी EQ आपको क्या देता है? कैरेक्टर। We define character with EQ. What is your character? Next quotient जो अभी पॉपुलरली है वो है SQ. That is social quotient. And what does it measure? It measures your ability to network and maintain friendship for long periods of time. सो हम जब बोलते हैं इस चीज को तो हम क्या कर रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि आपकी फ्रेंडशिप तो है, लेकिन बस ये पकड़ा आज और कल को फ्रेंडशिप छोड़ दी, ऐसा नहीं। आप वो मेंटेन भी करते हैं, नेटवर्किंग भी करते हैं और उस फ्रेंडशिप को मेंटेन भी करते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अब ईक्यू आपको कैरेक्टर देता है और एसक्यू आपको करिश्मा देता है। सो ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, लीडर्स के पास ये बहुत अच्छा होता है। सो करिश्मा और कैरेक्टर, ईक्यू एंड एसक्यू। अभी हमने जो एक कहानी सुनाई थी 3 फ्रेंड्स की, तो उन 3 फ्रेंड्स की कौन-सा क्वोशंट आता है? वो है एडवर्सिटी क्वोशंट। जो आज की दुनिया में, मतलब ये 3 क्वोशंट्स तो हमने डिस्कस कर लिया है, आईक्यू, ईक्यू, एसक्यू। अभी इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वोशंट आज की दुनिया में जो हो गया है, दैट इज एडवर्सिटी क्वोशंट। अब एडवर्सिटी मतलब जब कोई भी चीज आपके मन के मुताबिक नहीं होती है, आपकी लाइफ में जब, क्योंकि आजकल बच्चों को हम सिल्वर स्पून इन द माउथ लेकर पैदा हो रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। और जब आपको वो चीज जो आपको डिजायर चाहिए वो आपको नहीं मिलती, तो आप किस तरह से रिएक्ट होते हैं? एबिलिटी क्या है आपकी? रफ पैचेस के थ्रू, अपने लाइफ के रफ पैचेस के थ्रू जाने की आपकी क्या एबिलिटी है? कितनी एबिलिटी है आपके पास में? दैट इज योर एडवर्सिटी क्वोशंट। और साथ में ये नहीं है कि आप उसको फेस कैसे करते हो, क्या आप उस सिचुएशन में से, उस फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन अनस्क्रैच्ड बाहर आते? मतलब आपने उसको सही तरीके से एक्सेप्ट किया, आपके मन पर आघात तो हुआ, लेकिन आपने उसको सही तरीके से एक्सेप्ट करके आप फिर से ग्राउंडिंग करके और वापस से अपनी लाइफ में आ गए। क्या आप ये कर पाए उस सिचुएशन में? अगर आप कर पाए तो आपका एडवर्सिटी क्वोशंट अच्छा है, वरना आपका एडवर्सिटी क्वोशंट अच्छा नहीं है। क्योंकि इस केस में होता क्या है कि वो गिव अप कर देते हैं। बहुत बार हम लोग ये देखते हैं कहानी की, मैरिड पीपल होते हैं और उन लोगों के लाइफ में कुछ भी सिचुएशन आती है, रन आउट, वहां से जो भी प्रॉब्लम्स है उससे रन आउट कर जाते हैं और अपनी फैमिलीज को भी अबेंडन कर देते हैं। तो ये जो हमने 3 फ्रेंड्स की कहानी सुनी थी, उसमें से आपको क्या लगता है? आप जरूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये तीनों सिचुएशन में उन 3 फ्रेंड्स ने जैसा जैसा बिहेव किया, उसमें से कौन सा बिहेवियर ठीक था? और करेक्ट और ठीक कोई बिहेवियर होता नहीं है, क्योंकि हर कोई अपने कंडीशनिंग के हिसाब से बिहेव करता है। लेकिन हमें कैसा बिहेव करना चाहिए ऐसा आपको लगता है? जरूर कमेंट्स में डालिएगा स्टोरीज देखकर, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट स्टोरी ऑफ द 3 फ्रेंड्स व्हिच आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड विद यू। अभी ये एडवर्सिटी क्वोशंट कब 2 वक्त में, आज की दुनिया में कब 2 वक्त में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली हमको दिखाई देता है? फर्स्ट सिचुएशन इज करियर में प्रॉब्लम। करियर में प्रॉब्लम के टाइम से हो सकती है, हम हमारे मन का करियर नहीं कर पा रहे हैं, जो कर पा रहे हैं उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, वर्टिकल ग्रोथ नहीं हो रही है, पैसा नहीं मिल रहा है, और अभी कोरोना सिचुएशन में तो ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया है। और दूसरा जो मतलब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आजकल बहुत यंग एज में मेरे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो प्रॉब्लम तो करियर का लेकर आते हैं कि हमारे पास ऐसा नहीं हो रहा है, हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं इंजीनियरिंग में से ड्रॉप आउट कर लूं। लेकिन बैक में दूसरा प्रॉब्लम होता है और वो होता है ब्रेकअप। बहुत पॉपुलरली ये प्रॉब्लम आजकल हम लोगों को फेस करने पड़ते हैं, और बच्चे ओपनली आकर बताते हैं कि ड्रॉप रिलेशनशिप की वजह से मेरा 1 साल का ड्रॉप हो गया। अब आप उसमें से अनस्क्रैच्ड आते हो या कैसे बाहर आते हो उसमें से? और खास बात ये नहीं, जो अभी मैं देख रही हूँ समाज में, वो ये कहने वाले और इस तरह की प्रॉब्लम्स को लेकर आने वाले मैक्सिमम लड़के हैं।
girls are not coming up with such problems. I don't know what is happening out there, but usually girls don't report that due to breakup they have suffered in their studies. But usually boys do report that due to breakup they have suffered with their studies. Maybe that's their defense mechanism, or they are simply putting the blame of not getting good marks onto the breakup. Whatever the reasons may be, but boys are especially coming out with these type of problems. So here the adversity quotient plays a big role in your life. Now अगर आपके पास हाई एडवर्सिटी क्वोशंट है तो आपकी टेंडेंसीज क्या क्या रहेंगी? बहुत इंपॉर्टेंट इसकी एक टेंडेंसी रहती है दैट यू कैन टर्न योर ऑब्स्टेकल्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। आपके सामने जो भी ऑब्स्टेकल आता है, जैसे हमारे यहाँ पहले से कह के रखा हुआ है कि जब भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा कोई दरवाजा खोल के रखता है, बस आपको मुड़कर देखने की जरूरत होती है। वरना हम उसी दरवाजे के पीछे अगर सिर पटकते रह जाएंगे तो हमें कुछ नहीं दिखाई देगा। थोड़ा सा मुड़कर राइट लेफ्ट या पीछे देखेंगे तो एक और अपॉर्चुनिटी आपके सामने आकर खड़ी होती है। सो वी हैव टू लुक इनटू द अपॉर्चुनिटीज इन केस ऑफ ट्रबलिंग सिचुएशंस एंड यू मस्ट बी एबल टू टर्न योर ऑब्स्टेकल इनटू अपॉर्चुनिटीज। दूसरा, इन लोगों के पास में बहुत अच्छा ऑप्टिमिज्म होता है। दीज पीपल आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, दे हैव एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड इनोवेट। उस सिचुएशन में इनोवेट करके आगे जाने की इनके पास कैपेसिटी होती है एंड उसके बाद इनके पास एक एजिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है। ऐसे अगर आप लोगों को देखेंगे देन उनका एडवर्सिटी क्वोशंट बहुत अच्छा होता है। नहीं तो फिर हम देख ही रहे हैं समाज में कि छोटे-छोटे कारणों से लोग बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। टिकटॉक में मेरे लाइक्स कम आए इसलिए आत्महत्या। दे डोंट हैव गुड एडवर्सिटी क्वोशंट, दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। बिकॉज़ उनके केस में क्या हुआ वो तो हम नहीं जानते इंटरनली, लेकिन बाहर से जो दिखाई देता है वो यही है कि इतनी छोटी-छोटी बातों से वो लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। अब ये तो हो गए 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अलावा कुछ मजेदार क्वेश्चंस भी आजकल पॉपुलरली देखने को मिलते हैं। आई वुड से इन वर्क सिनेरियो, अगर आप जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी तो एक क्वेश्चन अभी कुछ रिसर्चर्स ने उसको पुट फोर्थ किया है एंड दैट इज कॉल्ड एज ओपन क्वेश्चन। अभी ओपन क्वेश्चन क्या बताता है? हाउ कोलैबोरेटिव एंड कनेक्टेड यू आर विथ योर टीम। आप कितना कोलैबोरेशन में बिहेव करते हैं और कितना कनेक्टेड रहते हैं अपनी टीम के साथ में, दैट इज कॉल्ड एज एन ओपन क्वेश्चन। देन वन मोर क्वेश्चन व्हिच इज डिफाइंड, इट्स गुड, इट्स कॉल्ड एज क्यूरियोसिटी क्वेश्चन। अब आपके पास कितनी क्यूरियोसिटी है, और ये क्यूरियोसिटी क्वेश्चन जो है इट इज प्लेइंग अ बिग रोल नाउअडेज बिकॉज वी नो दैट बाय 2030 800 मिलियन जॉब्स विल बी लॉस्ट ड्यू टू ऑटोमेशन। क्योंकि धीरे धीरे मशीन सब जगह पर आएंगे, सब चीजों को रिप्लेस करेंगे। जो रिपीटेटिव एक्शंस होंगे उनको तो पक्का से रिप्लेस करेंगे, लेकिन हम एक बात जरूर जानते हैं कि रोबोट्स क्यूरियस, तो वो तो ह्यूमन क्वालिटी है। और इसलिए हमारा क्यूरियोसिटी क्वोशंट अगर हाई है देन वी आर गोइंग टू सस्टेन इन फ्रंट ऑफ रोबोट्स आल्सो मे बी टुमारो। सो बिकॉज यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दैट बाय 2030 these many jobs are being lost and they are the same repetitive jobs जिसमें ऑटोमेशन इजी लाया जा सकता है, जिसको रोबोट रिप्लेस कर सकता है। इसके बाद इसी को हम कभी कभी पैशन क्वोशंट भी बोल सकते हैं कि आपके पास क्यूरियोसिटी है और आपके पास पैशन है उस चीज को करने का। अब लीडर्स, आजकल हम बहुत बार ये बात सुनते हैं दैट यू हैव टू हैव लीडरशिप क्वालिटीज, आपको अच्छा लीडर बनना चाहिए या अच्छा लीडर होना चाहिए। So I am many a times being asked this question that what do you think, which type of questions are required by a good leader? Then I'll definitely say IQ and EQ. EQ is very important. SQ is also important. But one more question which is nowadays coming up is called as decency question. You must be decent enough to, when you are becoming a leader, a decency quotient plays a very big role. You can't be harsh. You just cannot write off anyone which is down the cadre in your office, on your business or wherever you are, or for that matter you are a leader, राजनीति में है आप, तो आप किसी को राइट ऑफ नहीं कर सकते। तो इसलिए आपके पास डिसेंसी क्वोशंट होना बहुत जरूरी है। और क्योंकि आपको बैक ऑफ माइंड में एक चीज जरूर समझ लेनी चाहिए कि लीडरशिप इज एवरीथिंग अबाउट सर्विंग द पीपल। आपके पास जब ये एटीट्यूड डेवलप हो जाता है ना तो आप कम गलतियां करते हैं या कभी भी गलती नहीं करते, क्योंकि आप लीडर क्यों बने हैं इसका वाय बहुत क्लियर होना चाहिए। आप पावर के लिए लीडर बने हैं तब कभी भी आपके पास डिसेंसी क्वोशंट नहीं आएगा, फिर आपके पास एरोगेंस आ जाएगा।
तो अगर एरोगेंस नहीं होना है, बिकॉज बोथ आर अपोजिट्स ऑफ ईच अदर, अगर आपको एरोगेंट नहीं होना है तो डिसेंसी क्वोशंट अगर लाना है, देन बैक ऑफ माइंड में पावर की जगह ये होना चाहिए दैट आई एम हियर for serving other people. That's why I am a leader in whatever field or whatever aspect may be, but I am here to serve the people. तो डिसेंसी क्वेश्चन की भी जरूरत है। तो एक मजेदार क्वेश्चन आजकल डिफाइन हुआ है, आई क्यू, ई क्यू, एस क्यू भी चाहिए लीडर होने के लिए, बट आपको एक डी क्यू भी चाहिए, दैट इज क्वेश्चन। अभी हायरिंग की जब हम एक बात करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इज रिलेटेड टू जॉब एंड हायरिंग, तो 59% जो मैनेजरियल कैडर के लोग हैं वो कहते हैं कि हमने उनको एक क्वेश्चन पूछा था कि आप किसको हायर करोगे, हाई आईक्यू वाले बंदे को या हाई ईक्यू वाले बंदे को। तो अभी ऑलमोस्ट 59% लोगों ने ये जवाब दिया था कि जिसके पास हाई ईक्यू और लो, हाई आईक्यू और लो ईक्यू होगा उसको हम हायर नहीं करेंगे, हमको वो बंदा चलेगा जिसके पास में हाई आईक्यू और थोड़ा सा लो आईक्यू हो। तो हाई ईक्यू होना चाहिए, थोड़ा सा लो आईक्यू, हम उसको ट्रेन कर लेंगे। सो दिस इज व्हाट we have been talking today, and it was nice talking to all of you. I've got some comments which I will highlight. Kirti ma'am is saying good going. Chitalkar ji aaye hain, good going. So Kirti is again saying soft skills. Yes, we can take soft skills also in the next topic. So thank you anyways for watching with me. Good night.